Good morning, students. Now I'm going to start today's topic, transportation. Transportation in plants. Transportation in plants. In this topic, I want to explain the transportation. For transportation, some arrangement is required inside an organism, which can carry the essential substances to all its parts so that they reach each and every cell of its body. Dear students, इस ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सेल्स का अरेंजमेंट होता है जिसके हेल्प से बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंस का कैरी वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, I want to define it. Transport is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to other parts of its body through diffusion or osmosis. Means both diffusion as well as osmosis. With the help of these two processes, all materials are sent to another parts of plants. It helps to carry different nutrients. Also, it helps to carry different nutrients in plants as well as animals. Nutrients like food, oxygen, water, carbon dioxide, excretory products, hormones and minerals, all they are carried by transportation. Dear students, ये जितने भी materials, nutrients हैं, ये all these materials transported through a system named in different plants in different ways. In different plants or animals in different ways. Just like I want to explain you with the help of this diagram. Dear student, I want to explain this transportation in plants with the help of this diagram. In it, dear students, you can see this diagram, and in it there is a tube-like structure which passes the water and nutrients, means minerals, in upward directions from root to leaf. This system is known as xylem, and that is the phloem. Phloem is already prepared food material from leaf to expands or sent to another parts of plants, just like upward direction or downward directions. Dear students, now transportation in plants. Unlike animals, some materials pass in and out of plants through diffusion. Dear students, प्लांट्स में जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वह एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा होता है. ठीक है ना. द प्लांट्स पोसेस स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर रैपिड डिफ्यूजन. प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं जो इन मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करते हैं, जैसे स्टोमेटा भी हो गया और लेंटिसेल्स भी हैं. ठीक है ना. अ लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को रिलीज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में. ठीक है ना. एंड वाटर को उसे वाटर वेपर में कन्वर्ट करके और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन उसे रिलीज करने में. मीन्स बहुत सारी एक्टिविटी को ये परफॉर्म करता है
कंट्रोल करता है, ठीक है ना। प्लांट्स हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। प्लांट्स में ऑलरेडी बहुत सारे मैक्सिमम डेड सेल्स ही होते हैं, ठीक है ना। दे डू नॉट नीड टू मूव, इन्हें घूमने की आवश्यकता नहीं होती। सो दे हैव लो एनर्जी नीड्स, इनको लो एनर्जी की नीड्स होती है, इसलिए ये प्लांट्स जो होते हैं ये अपने सारे होल एनर्जी को स्टोर करके अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उस स्टोर्ड फूड को, उस स्टोर्ड एनर्जी को टाइम टू टाइम हम लोग यूज करते हैं, मीन्स हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है ना, मीन्स ऑल कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग tissues. Plants have two types of conducting tissues called xylem and phloem. Two types of conducting tissues. First of all, I want to explain xylem. Dear friends, I want to explain xylem. Xylem is a complex tissue. Xylem is a complex tissue, very complex, which transports sap. Sap means water and minerals. Xylem has 4 types of cells. Xylem also contains 4 types of cells, which was already read by you in previous classes, means class 9th. First, xylem fiber, xylem parenchyma, tracheids and vessels. All these 4 टिश्यूज में से आपको एक जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लाइव टिश्यूज होते हैं, एंड अनदर होल 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर डेड। इसलिए हम लोग जाइलम टिश्यूज को हम लोग डेड टिश्यूज ही मानते हैं, ओके, डेड टिश्यूज मानते हैं। ओनली एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके अनदर टोटली डेड होते हैं, और ओनली जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लाइफ है। ओनली वेसल्स एंड ट्रैकियाड्स आर हेल्पफुल। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में ओनली 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर हेल्पफुल टू ट्रांसपोर्टेशन, जैसे वेसल्स एंड ट्रैकियाड्स, मीन्स जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकियाड्स आर हेल्पफुल in transport of water and minerals. ये vessels and tracheids, dear students, I want to show वो diagram which represents the vessels and tracheids. Dear students, you can watch this diagram. This type of जो larger holes हैं, ये larger holes जाइलम वेसल्स हैं, और ये जो स्मॉलर जो सिप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये सिप्स नहीं, ये ट्रैकियाड्स हैं, ओके। डियर स्टूडेंट्स, ये जाइलम वेसल्स वाटर को कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियाड्स। ये जाइलम वेसल्स कंप्लीटली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड वेसल्स भी ऑलरेडी एंड ट्रैकियाड्स भी, और ये दोनों के दोनों टिश्यूज आपस में कंबाइंड फॉर्म में सैप्स को रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। द जाइलम वेसल्स इज अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। अभी अभी जस्ट हमने आपको जो डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में भी आपको हमने दिखाया कि उसमें वो लॉन्ग ड्रेन पाइप की तरह स्ट्रक्चर उसमें हमने आपको दिखाया, ठीक है ना, चाहे वो वेसल्स हो या ट्रैकियाड्स हो, ठीक है ना, दोनों, ये दोनों के दोनों जाइलम टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। ट्रैकियाड्स आर द लॉन्ग थीन स्पिंडल शेप्ड सेल्स विथ पिट्स इन दियर थिक सेल्स वॉल। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रैकियाड्स भी लॉन्ग होते हैं, बट ये थीन होते हैं, स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, ठीक है ना, और पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दियर थिक सेल्स वॉल, और इसके सेल वॉल जो होते हैं वो काफ़ी
थिक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम शोइंग यू दिस डायग्राम, दिस thin shaped structure known as tracheids, and that is the those are the xylem vessels. Transportation also helps in transporting the materials, means saps, means water and minerals both. When it reduces the water as vapor, the vacuum pressure is applied. Dear students, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब मटेरियल्स मीन्स वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद जब वह पूरी तरह से लीफ तक पहुंचता है, तो वहां पर ये जो लीफ है उसको रिड्यूस करने, इस वाटर को वाटर वेपर के रूप में उसे रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। और ये ट्रांसपायरेशन की हेल्प से वाटर वेपर के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। साथ साथ यहाँ ऑक्सीजन का भी रिलीज होता है, और इस रिलीज की वजह से इस स्टेम में पूरी तरह से उस ट्री का जो स्टेम होता है उस स्टेम में वो जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स होते हैं, इनमें वैक्यूम प्रेशर अप्लाइड होने लगता है, वैक्यूम। और इस वैक्यूम प्रेशर की वजह से रूट द्वारा एयर को शक कर लिया जाता है, एयर को शक किया जाता है, और इसकी वजह से तो द वैक्यूम प्रेशर इज अप्लाइड इन स्टेम ड्यू टू दिस रूट एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई वांट टू वॉच यू वन मोर डायग्राम, नहीं इस तरीके से। इन दिस डायग्राम I want to explain that this is the root part, root hair. It is a very thin part. Okay, it absorbs water with its soft part. Okay, and it also provide the next cortex cells and also provide shoot part of xylem tissues. मीन्स जाइलम टिश्यू का ये शूट पार्ट का जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उसको ये प्रोवाइड करता है, और यहाँ से जाइलम का वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स इसको ऑलवेज कंटेन करते हुए प्रोवाइड करते हुए नेक्स्ट सेल, और इस तरीके से इसको लेकर के लीफ तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। और यहाँ लीफ में फूड प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से यहाँ एनर्जी फॉर्मेशन होता है, और इस एनर्जी की वजह से यहाँ हीट प्रोड्यूस होता है, और इस हीट की वजह से यहाँ से जो एनर्जी होते हैं उस एनर्जी की वजह से यहाँ वाटर जो है एज वेपर ट्रांसपायरेट कर दिया जाता है लीफ द्वारा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो लीफ होते हैं वो जब ये ट्रांसपायरेशन करते हैं तो बहुत एक्सेस क्वांटिटी में वाटर और वेपर एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पार्ट में सक्शन पॉइंट बनता है। सक्शन मीन्स प्रेशर बनता है, प्रेशर मीन्स वैक्यूम रीजन फॉर्म होता है, और इस वैक्यूम रीजन की वजह से यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है वाटर को। फिर अगेन इसको मेंटेन करने के लिए तो यहाँ से वाटर को रिलीज किया जाता है और यहाँ से इसको सक किया जाता है, सक। ठीक है ना। और इस सक्शन से यहाँ से फिर से ये वाटर को ऑब्जर्व करके विथ मिनरल्स और इसको ऑब्जर्व करके अगेन इसको लीफ तक पहुँचाया जाता है। डियर स्टूडेंट, जाइलम टिश्यू एक्ट ओनली इन यूनिडायरेक्शनल, मीन्स फ्रॉम रूट टू लीफ। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जाइलम टिश्यू जो होते हैं वह ओनली वन डायरेक्शन में फंक्शन करता है। ठीक है ना। ओनली वन डायरेक्शन का मतलब फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है ना। मैं आपको एक बार फिर से इस डायग्राम के हेल्प से मैं आपको शो करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने देखा कि ये जाइलम टिश्यूज हैं, और ये जाइलम टिश्यूज फ्रॉम सॉइल टू अपवर्ड डायरेक्शंस, दिस डायरेक्शंस इज ऑल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है ना। इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, और ये रूट से फूड मटेरियल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसको पहुँचाते हैं लीफ तक। ठीक है ना, लीफ तक। तो दिस इज द ओनली यूनिडायरेक्शनल। ओके। नेक्स्ट टॉपिक
here phloem. Next, phloem is the part of our ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स. ये भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है ना. लाइक जाइलम वेसल्स, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. जिस तरीके से आपने जाइलम में पढ़ा 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, उसी तरह से आप फ्लोएम में भी 4 टाइप्स के सेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. ये भी है जिसको आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मैं आपको रिमाइंड नहीं करना चाहूँगा, ठीक है. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स ज्वाइंड इन टू इंड. और ये फ्लोएम टिश्यूज एक दूसरे से इंड टू इंड अटैच होते हैं टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स. और इससे लॉन्ग ट्यूब का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. और ये लॉन्ग ट्यूब हेल्प करते हैं फूड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने में, ठीक है ना. लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यू नो दिस, आप इसे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करता है. और दिस फूड नीड्स टू स्टोर. और ये फूड्स जो है स्टोर करने की जरूरत होती है बाय सेंडिंग थ्रू फ्लोएम. ये फ्लोएम टिश्यूज द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके उसको और सेंड किया जाता है. और इस सेंडिंग में ओनली पार्टिसिपेट द फ्लोएम टिश्यूज. द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स of the plant is called translocation. This is also known as translocation. Dear students, ये translocation means होता है कि transport of food from the leaves. लीफ में प्रिपेयर्ड जो फूड होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह जब हम सेंड करते हैं, हम नहीं मीन्स प्लांट का टिश्यूज जो होते हैं फ्लोएम टिश्यूज वो सेंड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है ना. ट्रांसफरिंग ऑफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स to another parts of plant. Okay, this is known as translocation. Sieve tubes do not contain nucleus. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सिव ट्यूब्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि ये सिव ट्यूब्स फ्लोएम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट ट्यूब्स है जो हमारे फूड मटेरियल्स को इजिली कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. दिस ट्यूब्स एक्ट ओनली टू सेंड प्रिपेयर फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, here I want to show you some diagram, ठीक है. जिस डायग्राम के हेल्प से हम आपको फिर समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि इसे हम लोग सिव ट्यूब्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? सिव ट्यूब्स. ये सिव ट्यूब्स विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. और इट एक्ट्स ओनली फॉर कैरिंग द वाटर, carrying the food materials which are prepared by the leaf to cell wall containing cellulose but no lignin. ये ऐसे सेल्स होते हैं इसमें लिग्निन नहीं होते. लिग्निन का मतलब इसमें हार्ड टफ नहीं होता है, बल्कि ये सॉफ्ट होते हैं. और सॉफ्ट होने की वजह से ये फूड को ट्रांसफरिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है ना. ये अनदर जो आपको ये सेल्स दिख रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा होगा, ये कंपेनियन सेल है, ठीक है ना. अदर टिश्यूज ऑफ फ्लोएम टिश्यू, ठीक है ना, या अदर सेल्स ऑफ फ्लोएम टिश्यूज. ये सिव ट्यूब्स सकिंग करता है, यहाँ से फूड एनर्जी को यानी प्रिपेयर्ड फूड को लीफ द्वारा इंटेक करता है और इसको अनदर. ये मल्टी डायरेक्शनल, मतलब ये फूड को इधर से इधर भी ले जा सकता है और उधर से इधर भी ला सकता है, ठीक है ना. तो ये किसी भी डायरेक्शन में उसको कैरी कर सकता है, ठीक है. तो ये दिस इज द सिव ट्यूब्स. डियर स्टूडेंट, phloem tissue act in multi-directional, means from leaf to stem और leaf to root. Dear students, अभी जस्ट हमने आपको एक डायग्राम में अभी आपको बताया है, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपका जो ये टिश्यूज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फूड मटेरियल को ले जाते हैं. अभी हमने आपको यहाँ पर जाइलम टिश्यूज को दिखाया है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप फूड मटेरियल जो है वह लीफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है एंड ऑल्सो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है. दिस डायग्राम शोज द फ्लोएम टिश्यूज आर मल्टी डायरेक्शनल, मीन्स ये किसी भी डायरेक्शन में अपने फूड को प्रिपेयर्ड फूड को कैरी करके ले जा सकते हैं. मीन्स मिडिल से टॉप की तरफ भी जा सकते हैं, मिडिल से मिडिल की तरफ भी अनदर ब्रांचेज में भी जा सकते हैं, एंड मिडिल टू बॉटम यानी रूट के पास भी ये ला सकता है. मीन्स फ्लोएम टिश्यूज में मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, ये अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें.
प्लीज़ और इस मैसेज को आप अनदर स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचाने की कोशिश करें।